व्यासपीठ पर उपस्थित परम पूज्य शेषरावजी महाराज, एमना उत्तराधिकारी पूज्य संतोषजी महाराज, जामगव्हाणना सरपंच श्री मगनभाई सापटा, जिल्हा पंचायतના સભ્યશ્રી ભગવાનભાઈ પાથરી, महाराष्ट्र राज्यના व्यसन मुक्ति अध्यक्ष सुधाकर चारोस्करजी, सेलवासના अध्यक्ष मगनभाई कुरकुटिया, જેમણે આટલી મોટી કાર્યક્રમની સભા યોજી એમાં મગનભાઈ પાસારિયા, निजर तालुकाना रतिलाल भाई, दक्षिण गुजरातना अध्यक्ष आनंद भाई चौधरी, बटुक भाई वापी અને 2023 ગઈકાલથી ચાલુ થયો 2023 ના સાલનો પહેલો સોમવાર અને સોમવાર શિવજીને બહુ પ્યારો છે। હું તમને એક વસ્તુ કહેવા માંગુ, અગર કોઈ તપસ્વી માણસ 5 વર્ષ લગીને તપ કરી શકે ને, એના કરતા તમે તડકામાં બેઠેલા છે ને આ પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજને તપ કરો છો, એ પુણ્ય તમને કાયમ માટે કાયમ ને કાયમ ઘરમાં રહેશે। એને તપ કહેવાય। कोई साधु संत डूंगर पर जाइने बेसी जाय, जय जय राम कृष्ण हरिना मंत्र जाप करवा लागी जाय અને પોતાનો સંસાર शेषरावजी મહારાજના તપ માટે તમે બધા સંસારને લઈને અહીંયા બેઠા છો, એ તપ મોટું છે। મારા ભાઈ બહેનો, આપણા ધર્મની અંદર જાહેર બાબાએ મંત્ર આપેલો છે, જે જે ભાવિક ભક્તોના ગળામાં લાલ માળા છે એમના માટે પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજે જાહેર મંત્ર આપેલો છે અને એક જ મંત્ર આપેલો છે, ખાલી ને ખાલી ઓમ નમઃ શિવાય। नहीं तो मनुभाई तमने एम कहे कि भाई तमे छे ने आम पहला दरवाजाथी आवजो ने हूँ तमने 5 मंत्र वधारे आपू, आ आपणा धर्ममां नथी, या आपणा धर्ममां नथी। परम पूज्य शेषरावजी महाराजना व्यसन मुक्तिना धर्मनी अंदर जाहेर मंत्र एक ज मंत्र खाली ओम नमः शिवाय, जेटलो जप करवो होय एटलो करी लेव, खाली ने खाली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शब्दनी अंदर आखी पृथ्वीनु पूરું બ્રહ્માંડ સમાયેલું છે અને આ એક જ મંત્ર છે। બીજી વસ્તુ, દરેકે દરેક ભાઈઓએ લાલ માળા ફરજિયાત પહેરવાની। કોઈક જગ્યાએ એમ થાય કે મને ભાઈ શરમ આવે, લાલ માળા કાઢીને હું ઓફિસમાં જાઉં, વાત ખોટી છે। આ લાલ માળા છે એટલે આપણી જિંદગી બચેલી છે। અગર લાલ માળા નીકળે નહીં રહેતે ને તો આપણી જિંદગી ક્યારની પૂરી થઈ જતી। બીજી અને ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ, આપણા ધર્મમાં આપણા ધર્મની ઉત્પત્તિ કરનાર પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજ છે અને એને ચલાવનાર ઉત્તરાધિકારી તરીકે પૂજ્ય સંતોષજી મહારાજ છે અને એના સિવાય આખા પૂરા ભારતભરમાં બીજો કોઈ વ્યક્તિ નથી, એ બી નોંધી લેજો। આખા દેશમાં કોઈ વ્યક્તિ એવો નથી કે એ આપણને આપણા જીવનને તારી શકે। આપણા જીવનનો ઉદ્ધાર કરવો હોય, સંસારને સુખી બનાવવો હોય, પૂજ્ય સંતોષજી મહારાજના પાવન ચરણો પર આપણે માથા મૂકવા પડશે અને જ્યારે બી ટાઈમ મળી જાય
ત્યારે સિરપુરની અંદર જઈને બાબાજીના સમાધિનું દર્શન કરવું પડશે. તમારું જીવન ધન્ય બની જશે ભાઈ બહેનો, જીવન ધન્ય બની જશે. અને આ વસ્તુ અમે ગેરંટીથી કહી શકીએ મારા ભાઈ બહેનો. અમુક માણસો એમ કહે, અમુક ભક્તો એમ કહે જામ ગભાણ માતે બાબાનો કાર્યક્રમ હતો એટલે મને કંઈક થહે, પણ હું સેલવાસ કે દમણ જઈને અંદર ખાને દોસ્તારો સાથે મળીને પી લેમ તો કંઈ નહીં થાય. મારી એક ખાલી તમને 2 મિનિટ મારો સમય આપું, મેં તમને એક વાત સમજાવું, ચાલે ને? ગોઠ લાવીને તમારો સમય તો નહીં બગડે ને? तुम्हाला एक बात कर दाखवा. एक गाव હતા जिसा जामगभाण गाव ऐसा एक गाव હતા અને આખા ગામની અંદર કોઈ ધર્મવાળા માણસ જ નહીં હતા. ને એક દિવસ આના કા ભાઈ એક સાધુ આને તેરું ગાવા સુનિંગના એટલે સાધુની બેસ ધર્મને વાત કરી દાખવે એટલે એક માણસની સાથે ધ્યાનમાં આવી કે ચાલની માને ધર્મ લેવલા હા. એટલે પેલા માણસ આ ને એની ધર્મ લીધા પણ તેના પરિવાર કોઈ નહીં હતા, ખાલી ધોનીજીના પતિ પત્ની ધોનીજીના. હવે સાધુના હિસાબ વિચાર હોય ના કચાલની બાઈના પરિવાર નહીં મળે. ધોનીજીના જે કદાચ ધર્મ લેતી ગામમાં ચર્ચા કરતી ધીરે ધીરે કરીને શિષ્ય વધતી ને ગામ એક વ્યસન મુક્ત હોईल ધર્મવતી હોईल ઈસા સાધુના વિચાર હતા. એટલે પેલા સાધુ મગ દાખલા તરીકે એનું હું ખડકવાળો હોય એવલા માંડવા જાવલા તો જામ ગભાણો હોય એટલે ઊભા રહે ને પેલા ભાઈને ઘરે જા પાણી પીને પાછા માંડવામાં પાછા ફીરે એટલે પેલા ભાઈને ઘરે જા, ધર્મવાળા ભાઈ એને ઘરે જા ને પાછા એ જતા રહ્યા. ઈસા કાયમ એના અવર જવર, કેમ કે પેલા તો શિષ્ય બનાવેલા હતા, અવર જવર ચાલુ રહેના એટલે કાયમ અવર જવર કર્યા હતા. એટલે પેલા જો ધર્મ લીધેલા ભાઈ ખરા ને એ ધોનીજીના હિસા વખત કા હરા આપણે ધર્મ તો લેતા પણ સાધુ કંટાળી ગયા વખતે એની મહેનત થોડીક કરશે. આપણા તો પોર ડીસોર જાણો આપણે તો ધોનીજીના મજૂરી કરીને જગજર ને યોજે કાયમ લીધા આપણે કાંઈ કરવું એટલે તે યોજના બનાવી. ધ્યાન પડે વાત આવી જશે. તે ધોનીજીના યોજના બનાવી. યોજના એસી બનાવી કે આતા જ આપણે ઘરે સાધુ આના ને તો તમને બીસવું લાભેશ, વાત કરવું લાભેશ અને ઘરમાં હા ને તો એક તો ભાત છોલા મુશ્કી હે ને ઓળખતા હશે ને મુશ્કી કણગી શાકતા તે ખાલી હતી બરાબર, તેમાં ભાત નહીં હતા, ખાલી હતી. તે ઊભી કરીને થવી જીસા સાધુ ઈને વટા આપીશ ના એટલે ઘરવાળાને આખા પાણી લઈને તો પેલી બાઈકો આને ઘરમાં શું જોર કરે પાજુલા હવાસને પાજરા માતા હતા ઈ ચાલ ને એટલે તો ઈસા આકા ઈસી નો કાને તુલામાં ઈને ફટાકડીને તું નહીં જાને હોય એટલે તો ઘરવાળા આને ઘરમાં ગયા અને તો ઘરવાળા માણસ મુશ્કીને લગાવે કરે અને ઘરવાળા મોટલા રડે કરે. ફટાફટ લગાવે એટલે ઘરવાળા એને બહુ રડે આંટી રડે. એટલે સાધુલા ઈસા હોય ને કે મારા માં નામ એને સંસારમાં ભંગ પડના એને કરતા માં આઠું ઉઠી જા તેના ઘરમાં નાટક ચાલે કરે. સાધુ ઉઠનાને તાતા અને દિવાલ ઈટાના નહીં હતા, ખપાડા હતા. સાધુ ઉઠના અને ખપાડા તો લીપેલ નહીં હતા ને એટલે જાય હું આરામથી નદીને કરે એટલે તેના ધોનીજીનાથી ચાલે કરે. ગોહલ્યા બહાર નહીં ના હેરતા તો સાધુ નહીં મળે. ઘરમાં ગયા બાઈકો લાખા કા માતા મુશ્કીને લગાવે કરે. સાધુ ઉઠી ગયા તો તું જે કહારે રસ બાઈકો ઈસા કા તું માને લગાવો થોડા તો મુશ્કીને લગાવસ તા માતે એરે બેરે તરી ચાલ રડેંજ કરા અને તા તો સાધુ આખા માહિત તુમના નાટક હેરેંજ કરા. દુનિયાની અંદર કોઈ પણ દુનિયાની ખૂણામાં જા દપીને બે અગર દારૂ પી નસ ને ત્યારે परम पूज्य शेषराव जी महाराज ते जगाना चालक हा यो भी तुम्हाला हरेंज करी सोडणार नाही. भरोसा ठेवजास बाबावर कट्ठ बी जाय दपसाल ने तरी छोडो नहीं. आसमान માં જા જમીન માં જા અને એકલા જ બી ધાબળીમાં ગુંડાઈને નિશાલે તરી હરે કરી. એટલે आपला एक જ रस्ता हा पूज्य संतोषजी महाराजने पायावर पाय ठेवीने जीवनाला उद्धार करूला એને સિવાય दूसरा કોઈ માર્ગ નહીં. પૂજ્ય સંતોષજી મહારાજની અંદર
शिव शक्ती समाई नहीं, दिव्य शक्ती समाई नहीं, परम पूज्य शेषरावजी महाराजनी शक्ती समाई नहीं, पण आपल्याला दाखवणी नहीं तो एखाद दिवसा बाबा रहता ने तो दाढ़ी बाड़ी धोती बोती लगावीने वटके साथ फिरता है। साची जटे हकीकत हा एला समजूला बहु वार लागे भाई बहनों, एला समजूला बहु वार लागे। એટલે ધર્મની અંદર માં એક પૂજ્ય સંતોષજી મહારાજની પાવન કૃપાથી પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજના દિવ્ય આશીર્વાદથી અને આપણે બધા બેસેલા ભાઈઓને બહેનોને કાર્યકર્તા તમને શક્તિથી मला गुजरात राज्यના अध्यक्ष बनावा मैं तुमना सेवक हाव, तुमना कार्यकर्ता हाव, मैं तुम्हारा वचन राखी संगा धर्मની અંદર तुम्हारा कोई पण प्रकार की इमरजेंसी अड़चन पड़ा माना डॉक्टर नंबर ले लीजास तुमने सेवा में उभा रहला तैयार हाव। मारा भाई बहनों હવે પછી મોહરા કાર્યક્રમ બાબાના હા આગળ કદી સમય જડીલ આપણે બહુ વાત કરું। અને दुसरी गोष्ट आपले कार्यक्रमना तुम्हाला माखा हा 2-2 नी 3-3 वर्षा सुधी कार्यक्रम बुकिंग होई ગયા बुकिंग 1-2 मास नी 24 ना भी कार्यक्रम बुकिंग होईना અને 25 ना भी कार्यक्रम बुकिंग होईना। ई तारीखे पण तारीखनी वाट आहे। आणि ये कार्यक्रम कुणाला खबर, ये कार्यक्रम आलिशान बंगलावाला नहीं, ये कार्यक्रम कोई नेताला नहीं, ये कार्यक्रम दारू पीने खाना में पड़ी रहत ने तेना होता। तो मला तुम्ही शांततेत सांभाळा, माना वक्तव्य बंद करा, बोलता बोलता कदाच भूल होई हवी माफ कर जास। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमो नमः। आराध्य तथा परम दैवत शिव प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ, शक्ति स्वरूप माता जगदम्बा, माता सप्तशृंगी, माता गायत्री, आदिवासी कुल दैवित यहामोगी माता, दशा माता, कंसरा माता, ग्राम दैवत ग्राम रक्षक राम भक्त हनुमान मारुति महाराज, महान शांतते के महान दैवत गौतम बुद्ध, क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, भगवान एकलव्य, जिनको साक्षात भगवान शिव जी ने दर्शन दिया, मरते मरते बचाया, ऐसे परम पूजनीय शेषराव महाराज, इन सभी देवी देवताओं को, गुरु को मैं नमन करता हूँ, सप्रेम नमस्कार करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तगण, दूर दूर से आए हुए आप सभी भक्तगण, चिकार, तापी, नर्मदा, कोठुड़ा, पेट साइड से, इधर सैलवास से, तलासरी, डहानू से भी जिनको जिनको मोबाइल पे व्हाट्सएप ग्रुप पे जानकारी मिली कि अपना गुरु का कार्यक्रम है, आप सब काम धाम छोड़ के आज का दिन गुरु के नाम कर दिया। ऐसे दूर दूर से पंचकृषि से आए हुए, पानसकुटली, कपराड़ा और ये सब परिसर से आए हुए, अंदरपाड़ा, मेघवाड़, आप सभी को मैं सप्रेम नमस्कार करता हूँ और प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को, जो अपना व्यसन मुक्ति संगठन के कार्यकर्ता गण है, जिन्होंने ये कार्यक्रम के लिए परम पूज्य शेषराव महाराज जी के लिए अपना कीमती से कीमती समय जो लोग देते हैं, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि लोग पैसा दे सकते हैं लेकिन समय कोई किसी के पास नहीं है। लेकिन ये जो लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये सब समय दान करने वाले लोग हैं। पैसे से ज़्यादा समय कीमती है, अपने जीवन का समय कीमती है। पैसा भले वापस आ सकता, लेकिन गुजरा हुआ समय फिर वापस नहीं आ सकता। तो इसमें से सुधाकर चारोस्कर महाराष्ट्र का अध्यक्ष है, अशोक राउत
संजय डगे, सजन डगे, राजू जाधव, भगवान महिरे, ज्ञानेश्वर कोकाटे, बाळू गाडवे, मोरगांव रंगनाथ चारोस्कर, रामदास आघाटे, ये सब लोग नासिक से आए हुए हैं, डिंडोरी से। और दूसरी बात, गुजरात का अध्यक्ष जिसने अभी अभी मार्गदर्शन किया, यह अध्यक्ष है मनुभाई जोपड़े, और गुजरात का महासचिव है PSI आनंद भाई, और सेलवास का अध्यक्ष है मगन भाई कुरकुटिया। ये तीन लोग ऐसे हैं कि आपको कोई भी जरूरत पड़े, संगठन का कुछ भी काम हो, ये तीन लोग अपना गुरु का काम कर रहे हैं और निस्वार्थ काम कर रहे हैं। खुद महाराज नहीं बने, मनु भाई खुद महाराज नहीं बना, उसने बाबा का अपमान नहीं किया, वो बन सकता था, लेकिन उसने बाबा से बेईमानी नहीं की, शेषराव बाबा से बेईमानी नहीं की। तो ये आपको कुछ भी जरूरत पड़े, इन लोगों से कांटेक्ट करना। अपना एक ही जगह है शेषराव बाबा, और एक ही उत्तराधिकारी संतोष महाराज, क्योंकि संतोष महाराज में शेषराव बाबा का खून है, शेषराव बाबा का खून है, इसीलिए वो उत्तराधिकारी है। जगह जगह कोई बोगस महाराज बन गए पैसा कमाने के लिए, तो उनके पास जाना भी अपराध है, और उनके पास जाना भी शेषराव बाबा का अपमान है। तो उनके पास जाने वाला भी पापी है, बराबर है कि नहीं? जो कोई चोरी करने वाला अगर चोरी करता है तो चोरी में साथ देने वाला भी कौन हुआ? वो भी गुनहगार हुआ। आप नहीं जाते तो उसका दुकान नहीं चलता। तो ये सब बंद होना चाहिए। तो ये आपको व्यसन मुक्ति संघ अपना सेलवास वाला अपना मगन भाई कुरकुटिया, ये तीन लोगों से कांटेक्ट करना। कड़ी धूप में आप बैठे हुए हैं तो ये तपस्या आपकी जाया नहीं जाएंगे, ये गारंटी। इसकी प्राप्ति आप सभी को होंगे। जो इतने कड़ी धूप में आप बैठे हैं कि क्योंकि कैसा है रहते हैं कि सुबह ठंडी बजती है और दोपहर को इतना धूप लगता कि ये धूप डायरेक्ट अपने शरीर में घुस जाती। तो इतनी कड़ी धूप में आप बैठे हुए हैं सिर्फ गुरु के लिए, तो ये तपस्या का फल आपको मिलने वाला है। आप जितनी देर बैठे हैं इस कड़ी धूप में, ये आपकी तपस्या बिल्कुल बेकार नहीं जाएंगी, ये तो गारंटी देता हूं मैं आपको। क्योंकि ये शेषराव महाराज का कार्यक्रम है जिसमें इतनी शक्ति के हाथ ऊपर करके जो बारिश रुका सकता था, इतनी पावर जिसमें, जो साक्षात शंभू का अवतार, शेषराव बाबा साक्षात शंभू का अवतार, तो उन्हीं का ये कार्यक्रम है। मैं कौन हूं? मेरा चुनाव शेषराव बाबा का उत्तराधिकारी हूँ। मेरा चुनाव किसने किया? भगवान ने किया। मैं शेषराव बाबा का बड़ा लड़का, उनका खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, उनका खून मेरे शरीर में है। और आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों को जो जो चमत्कार हो रहे हैं, जो जो अनुभव आ रहा है, अभी कल ही का प्रोग्राम हुआ चिकार में, तो एक लड़की बोल नहीं सकती थी, गूंगी थी, मैंने माला पहना दी और वो बोलने लग गई। मैंने उससे कहा कि बेटा ये सब शक्ति मेरी नहीं है, सिर्फ जिस हाथ में, जिस शरीर में ये बाबा का खून है, ये खून काम कर रहा है। मैं तो सिर्फ माला बना के देता हूँ, प्रार्थना करके देता हूँ कि हे भगवान ये गरीब का भला कर दे, हे शेषराव बाबा गरीब का भला कर दे। और देखो वो बोलने लग गया। कल लाए थे, वो छोटी बच्ची थी, जन्म से नहीं बोल पाती थी, मैंने माला पहना दी, बोलने लगे। पिपरोने में 2 नारियल दिया था, संतान नहीं थी 5-5 साल से, नारियल बना के दिया। 1 साल पहले की बात है, 3 जनवरी को प्रोग्राम हुआ था, आप सभी को पता है। पिपरोने में अभी बच्चों को लेके आए, दोनों के दोनों नारियल सक्सेस हो गए, संतान हो गए। 5 साल से कुछ नहीं था, दवाखाने किए, बोले सब कुछ किया। ये मगन भाई बैठा हुआ है, पूछ लो उनसे। पिपरोनी के प्रोग्राम में 2 नारियल बना के दिया था संतान के लिए, आज भी 4-5 नारियल बना के दिया है। मेरी प्रार्थना है, क्योंकि आप उम्मीद लेके जो मेरे पास आते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि बाबा संतोष बाबा तुझमें हम शेषराव बाबा को देखते हैं, तुझमें देखते हैं। तो जो उम्मीद लेके आप मेरे पास आते हैं, तो मेरा भी फर्ज है कि उसी बाबा को प्रणाम करके, क्योंकि वो तो शंभू का अवतार है, उसी को प्रार्थना करके, क्योंकि शेषराव बाबा कहीं नहीं गया। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती। उसी बाबा को मैं प्रार्थना करूं कि हे भगवान इसका भला कर दो।
आप सभी लोग जो दर्शन लेते वक्त बाबा मुझे ये हुआ वो हुआ बोलते हैं, मैं बाबा से 1 सेकंड में प्रार्थना करके माला पहना देता हूँ। उसमें क्या नुकसान है? लाख रुपए लगने वाले हैं क्या? 2 लाख रुपए लगने वाले हैं क्या? नहीं। सिर्फ जो गद्दी पे मैं बैठा हूँ, मैं उत्तराधिकारी हूँ और आपको माला पहना दे रहा हूँ, वो बाबा को उनका आशीर्वाद लेके उनसे प्रार्थना करके दे रहा हूँ। फिर ये जामलिया में, ये आनंद भाई को पूछो, जामलिया में 2 नारियल दिया था संतान के लिए, वो भी दोनों सक्सेस हो गए, दोनों भी सक्सेस हो गए। वो जाने दो, एक दो प्रोग्राम से पहले एक आदमी का हाथ ऐसा अकड़ गया था, हाथ ऊपर भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, वो एक लूला हो गया था। मैंने माला बना के दी, वो आदमी आया है आज, माला बना के दी। पहला प्रोग्राम हो गया, दूसरा और अभी तीसरा प्रोग्राम है, तो क्या हुआ होगा? उसका हाथ तो पूरी तरह ठीक तो हुआ ही है, आया है वो आदमी, लेकिन वो बोला कि कल सुबह मैं आपके वरघोड़ा में नाचूंगा। हाथ ठीक हो गया, खड़ा रहो खड़ा रहो। जिसका हाथ ठीक हो गया माला पहनने के बाद, हाँ देखो मी बोलतो बरोबर आहे का? दोन्ही हात वर कर. हा, हात मुडला होता तर कसं झालं होतं मग? दवाखान्याला गेले तर काय म्हणे 35,000 लागतील. तिथं गेले नाही, मग माळ टाकली. माईक दे त्याला. मैं तुझ्या भाषेत बोल, तुझ्या भाषेत बोल. दवाखान्याला गेलो चालू आहे. गेलो ना, हा तर डॉक्टरने मला म्हणला हा, काय जवळ पकड, माईक जवळ पकडून बोल. 35,000 तुला खर्चा लागेल. हा तर मला हात फार दुखत होता. हा मी 570 रुपयाची दवा घेतली. हा मग तो मला खायचा नाही विचारायला, जंगली दवा करायला गेलो, तसं पाटा बांधला. हा 3 दिवस झालं तर हा मी आपल्या हाडकीचोर हडकायचोड. तसं प्रोग्राम झाला. हा. मग मी तसाच हात घेऊन तसं आलो. हा तसं बाबाला दाखवला, बाबा माझा हात तो मोडेल आहे. तर बाबाने हात फिरवला, सांगला सुखी रसी सुदर्शी. तर तसे करून आपले 3 प्रोग्राम केलं, पिपळुटी आणि मेघवाळ. हम्म. ते संध्याकाळी तुला मी सांगला बाबा माझा हात ठीक झाला आणि ठीक झाला. घोडावर टाळ्या वाजवता. नाचणार. मग आता ही जी 35,000 जे 35,000 डॉक्टर घेणार होता, ते याला बाबाला वाचवले, गरीब आहे. काल आपला इथे दरापाडा त्या साईडला, सुरगाणा साईडला 1 महिन्यापासून बच्चा रडत होता. त्याची रड थांबत नव्हती. गरीब पोरगी आहे, गरीब आदिवासी समाज. मागच्या कार्यक्रमाला मी माळ टाकून दिली, तो पोरगा एकदम ओके झालेला आहे, तब्येत पण सुधारली, छोटा बच्चा आहे, एकदम ओके झाला. तिनं काल येऊन माईकवर सांगितलं सगळ्या पब्लिक समोर की 1 वर्ष रड थांबत नव्हती, मी फक्त माळ टाकली बाबाची आणि त्याचा दुखणं बरं झालं. असं किती काय, ही काही जादू मंत्र नाही किंवा काही, फक्त शेषराव बाबा वरून पाहत आहे आणि तुमची भक्ती. सगळ्यात महत्त्वाचं काय, तुमची भक्ती. भक्ती नसेल तर कुठेच भगवंता, जर तुमची भक्ती नसेल तर कुठेही भगवंता परमात्मा नाही आहे. माझ्या बंधूंना, या ठिकाणी बाबूभाई सिल्लीवाला, महेशभाई कोठारवाला, साई भक्त अपना बाबा बुद्धिराम, उसके बाद यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने बाबा का मंदिर बनाया, ये मगन भाई पासरिया, बहुत बड़ा भक्त है बाबा का और दीवाना भक्त है. उसको शेषराव बाबा के सिवा कुछ नहीं दिखता. और इसका भी देखो कितना कल्याण हो गया. उसका लड़का डॉक्टर बन गया, MBBS डॉक्टर है. लड़के का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, लेकिन बाबा ने, शेषराव बाबा ने उसके सपने में आके कि तेरे एक जगह खाली हो जाएंगे तेरे बेटे के लिए. तो जैसे ये गया तो बराबर 1 छोड़ के 2 जगह खाली हो गए थे डॉक्टरी के लिए. तो ये सब अनुभव के सिवा कुछ नहीं. आपका भी अगर नुकसान होता तो आप इतने कड़ी धूप में यहाँ आके बैठते क्या? देखो, मैं कल ही प्रोग्राम में बोला कि एक मंत्री के लिए अगर इतनी पब्लिक जमा करनी हो तो कितना पैसा खर्चा आएगा. एक आदमी 300 रुपये लेता है और खाना खाने का अलग, गाड़ी भाड़े का अलग. और ये आज जो तुम इतने कड़ी धूप में बैठे हो, सुबह से आए हो,
अपने खर्चे से आए। इससे बड़ा और प्रूफ क्या चाहिए? इसका मतलब शेषराव बाबा ने हमारा भला किया। अभी अभी मनु भाई ने बोला, सच बोला है कि शेषराव बाबा नहीं होते तो हम में से बहुत से फोटो में दिखते। बराबर है कि नहीं? बहुत से फोटो में दिखते हैं। और आप लोग कभी बाबा का उपकार नहीं भूलते, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है ये। नहीं तो बहुत सारे लोग तो भूल भी गए, दारू छूट गई, घर बनाए, बंगले बनाए, गाड़ी ली, और शेषराव बाबा याद तक नहीं। तो ऐसे बहुत लोग हैं। उसके बाद में ये जो प्रोग्राम लिया, ये मगन भाई का कहना है कि अपना शेषराव बाबा का भी कहना था कि अपना गुरु, पति का गुरु पत्नी है। बराबर है, क्योंकि पत्नी पति को सुधारती है, भटकने नहीं देती है। बराबर है क्या? ये बात सच है, बिल्कुल सच है। तो गीताबेन पासरिया का सत्कार करेंगे हमारे संगठन के तरफ से। आ जाओ गीताबेन, गीताबेन सामने आ जाओ। गीताबेन पासरिया, मराठी बोलू? किती लोकांना वाटते मी मराठीत बोललं पाहिजे? हात वर करा बरं. आपलेच आहे. आणि आपल्या या इकडचे जे सेल्वाची, माझ्या बंधूंना पहिला सुरुवातला कार्यक्रम झाला होता जाम गबानला, नंतर मग झाला कार्यक्रम मोरखलला. जाम गबानला कार्यक्रम घेतला होता याच लोकांनी, तुम्हीच लोकांनी घेतला होता. फार भक्तिवान लोक आहे तुम्ही. शेषराव बाबाला जंगलामध्ये भगवान शंकरानं भेट दिली, त्यांना वरदान दिलं, मरता मरता वाचवलं. आपल्याला शेषराव बाबाची स्टोरी माहिती आहे. शेषराव बाबा फाशी घेणार होते, पण त्यांना वाचवलं. दर्शन दिलं शेषराव बाबाला. भगवान भोलेनाथानं दर्शन दिलं की बेटा तुला काय पाहिजे. त्यावेळेस शेषराव बाबानं फक्त एक वरदान मागितलं की देवा मला एक शक्ती अशी द्या. भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकराजवळ वरदान असं मागितलं की मला अशी शक्ती द्या, असं वरदान द्या की माझ्या हातून या गोरगरीब समाजाची दारू सुटली पाहिजे, त्यांच्या घरामध्ये सुख शांती आली पाहिजे. आज बघा चमत्कार बघा, कान्याकोपऱ्यात कुठेही तुम्ही गेले, कोणत्याही गावामध्ये गेले तर प्रत्येक गावात आपला शेषराव बाबाचा लाल कंठीवाला भक्त आहे. आणि प्रत्येकाची जर आपण कहाणी ऐकली तर तुमच्या प्रत्येकाच्या लक्षात येऊन जाईल की त्याच्या कहाणीमध्ये फक्त त्याचा झालेला फायदा आहे. नुकसान शेषराव बाबांनी कुणाकडून 1 रुपया न घेता त्याची दारू सोडवली. बरोबर आहे का? आणि खास करून आपल्या आदिवासी समाजाचं भलं केलं, खास करून आपल्या आदिवासी समाजाचं भलं केलं. आणि तुम्हाला मी सांगतो, मी माझा अनुभव सांगतो. 22 वर्ष अगोदर मी शेषराव बाबाचा मोठा मुलगा, माझा लहाना भाऊ, आम्ही दोघं भाऊ. माझा लहाना भाऊ वकील आहे आणि माझ्यापेक्षा 2 माझ्या मोठ्या बहिणी आहे. आणि जसं शास्त्रामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राजाचा मोठा मुलगा राजा होतो, महाराजचा मोठा मुलगा गादीचा उत्तराधिकारी होतो. अशा पद्धतीनं मला या गादीवर बसवण्यात आलं तर मी 18 वर्षाचा होतो. आणि 18 वर्षाचं मला काही कळत नव्हतं, मी क्रिकेट खेळ. पण त्या भगवान भोलेनाथानं हे रजिस्टरवर लिहून ठेवलं होतं की शेषराव बाबाच्या नंतर हे कार्य मला करावं लागेल. आणि मी कुठे तपस्या केली नाही, पण काहीतरी माझे अनेक जन्माचे पुण्य असेल म्हणून मी उत्तराधिकारी त्यांच्या गादीवर बसलो. तर मी माझ्या मनानं बसलो की तुम्ही लोकांनी मला बसवलं, तुम्ही लोकांनी मला बसवलं. आणि त्या दिवसापासून माझ्या बंधूंनो जे मी हे कार्य सुरू केलं तर 22 वर्षामध्ये 1.5 करोड लोकांची दारू सोडली मी आजपर्यंत. आणि 1.5 कोटी लोकांमध्ये 60 लाख आपले आदिवासी बांधव आहेत. कान्याकोपऱ्यामध्ये मी जंगलामध्ये गेलो, मेघवाळ असेल, आवाडांग असेल, नवापूर असेल, तापी जिल्हा असेल, नर्मदा जिल्हा असेल, इकडे मेघवाळ, सेलवास, डहाणू, तलासरी, ठाणे जिल्हा, उल्हासनगर, जिथं जिथं आपले आदिवासी लोक असतील त्या ठिकाणी जाऊन मी आपल्या आदिवासी गरीब समाजाला सुधारण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना सुधारलं. महाराष्ट्र सरकारनं मला 1 सोडून 5 पुरस्कार दिले या कार्याबद्दल. ही सगळी शक्ती कुणाची आहे? त्या शेषराव बाबाची. त्या शेषराव बाबाची ही शक्ती आहे. हजारो लोक जे लुळे पांगळे चालायला लागले, काय जे
डोळ्यानं दिसत नव्हतं, त्यांना दिसायला लागलं, मुके बोलायला लागले, माळी टाकून लोकांना दुरुस्त झाले होतं. तर ही सगळी शक्ती शेषराव बाबाची आहे. आता काही गोष्ट काय झालं, मी काही लोकांना मोठेपणा दिला की हा आमचा कार्यकर्ता आहे, हा आमचा मोठा आहे, तो स्वतःच नाराज झाला. असे पण आहे, स्वतःच बाबाची मूर्ती लावली आणि दुकान सुरू केलं. या माझ्याकडे या, मी संकल्प देतो, या माझ्याकडे या, मी माळ टाकून देतो, पैसा घेतो. तुमच्या एवढ्या लोकांना जर शिरपूरचं तीर्थ या व्यक्तीनं तुमच्या गावात घडवलं की प्रवचन, संकल्प, माळी, फोटो, महाप्रसाद जे शिरपूरला मिळतं ते सगळं याने याच्या गावात इथं तुमच्या उपलब्ध करून दिलं. त्याला कारण हे मगनभाई परसी आहे. शिरपूरचं तीर्थ त्यानं तुमच्या गावात आणलं. आणि काय कारण, सकाळीच मला उठल्याबरोबर मगनभाई म्हणतो की महाराज माझी विनंती एवढीच आहे की 8 वाजेचा कार्यक्रम आहे, पण तू टाइम जरी झाला तर मला नाराज होऊ देऊ नको, माझ्या एकाही भक्ताला नाराज होऊ देऊ नको, सगळ्यांचं दर्शन झालं पाहिजे आणि शांततेनं माझा कार्यक्रम कर. कुणासाठी? फक्त तुमच्यासाठी, फक्त तुमच्यासाठी. टाइम लागला तर लागू दे म्हणे बाबा, एवढ्या वेळेस मला माफ कर, पण माझ्या या परिसरातल्या भक्ताला नाराज करू नको. हे सच्चा होऊ शकत नाही. हे लोक या ठिकाणी माझ्या गावात दर्शन घेतील एवढाच प्रामाणिक उद्देश त्यांचा आहे, लबाडीचा उद्देश त्यांचा एवढा प्रामाणिक उद्देश आहे या माणसाचा. आणि आपल्या परिसरात मला सांगा, तुम्ही तुमचं किती भलं झालेलं आहे. मी सांगण्यापेक्षा तुम्ही स्वतःच तुमची भक्ती सांगते की सकाळी 9 वाजेपासून तुम्ही या कार्यक्रमात आलेले आहे, लेकरं बाळ घेऊन आलेले आहे. तसं आपण गेलो नसतो कुठे. फक्त आज माझ्या गुरुचा कार्यक्रम आहे, संतोष बाबाचा कार्यक्रम आहे, मला तिथं जायला पाहिजे म्हणून ज्या गुरुनं आपलं भलं केलं त्या कार्यक्रमासाठी तुम्ही आज या ठिकाणी आले. माझ्या बंधूंनो, मी आणि तुम्ही अलग नाहीये. मी तुमच्याच परिवारातला माणूस आहे, तुमच्याच परिवारातला सदस्य आहे. फक्त आपलं हे जे परिवाराचं नातं तयार केलं, तुम्हाला माहिती मी कुठं जास्त करून आदिवासी लोकांच्या घरी मुक्कामी थांबतो, त्यांच्या हातचं जेवण करतो, त्यांच्या हातची चहा पितो. कारण शेषराव बाबाची ऑर्डर आहे, मला शेषराव बाबाची ऑर्डर आहे. त्यांनी सांगितलं की एखाद्या श्रीमंत माणसाला मागत, त्याचं नाही ऐकलं तर चालेल, त्याला तारीख नाही दिली तरी चालेल, पण जर का गरीब आदिवासींना बोलवतो संतोष, पहिलं त्याचं काम करायचं, कारण त्याचं सेवा म्हणजे देवाची सेवा. या विश्वामध्ये, पूर्ण जगामध्ये सगळ्यात इमानदार समाज जर कोणी असेल तर आदिवासी समाज आहे, हे माझं मत आहे. मी माझं 22 वर्ष झाले तुमची सेवा करतो. माझे या मतापर्यंत मी आलो की तुमचं हृदय म्हणजे 24 कॅरेट आहे. भगवंत कुठे राहत असेल तर तुमच्या हृदयामध्ये राहतो. परमात्मा आहे तुमच्या हृदयात, तुम्ही देवाचे माणसं. आणि मी तुमची सेवा करतो म्हणजे फार मोठा तीर मारतो असं नाहीये. मी तुमची सेवा करतो कारण मला तुमच्या आशीर्वादाची गरज आहे, तुमच्या मुलांच्या आशीर्वादाची गरज आहे, म्हणून मी तुमची सेवा करतो. तुमचं भलं झालं तर फक्त तुमचं एकट्याचं भलं नाही होत, तुमचे मुलं बाळ सुखी होतात, मोठमोठे अधिकारी बनतात, डॉक्टर बनतात, इंजिनियर बनतात. आता मगनभाई परसियानं दारू सोडली नसती तर त्याचा मुलगा डॉक्टर झाला असता का? बरोबर आहे का? वेळेवर जर वडिलाची साथ नसेल मुलाला तर डॉक्टर काय शिपाई पण होऊ शकत नाही. चुकीचं बोलतो का? या मगनभाईला 3000 रुपये भाडे डॉक्टरिंगचं काम करत होते ती बाई. 3000 रुपये व्याजाने काढून आणलं होतं शिरपूरला. अशा व्यक्तीचा मुलगा जर दारूच पित राहिला असता, मगनभाई दारूच पित राहिला असता, तर त्याचा मुलगा डॉक्टर होऊ शकला असता का? दिमाग आहे डॉक्टर होण्याचा, पण वडिलाची जर साथ नसेल तर कोणी कलेक्टर बनू शकत नाही, कोणी डॉक्टर बनू शकत नाही, कोणी शिक्षक बनू शकत नाही. तर हे उपकार त्या डॉक्टर होण्या पाठीमागं कुठेतरी शेषराव बाबाचे आहे. बरोबर आहे का नाही? तुमचे मुलं जर मोठमोठे अधिकारी झाले तर कुठेतरी शेषराव बाबाचा आशीर्वादच आहे. आणि हे तुम्हाला पक्क माहिती आहे. तुम्हाला माहिती आहे का, दारूवाल्यानं एक दिवस दारू नाही पिली, जो रोज दारू पितो आणि घरात मारपीट करतो, त्या माणसानं जर एक दिवस दारू नाही पिली तर ती माऊली काय म्हणते?
की आज माझ्या घरी सण आहे, दिवाळी आहे, दसरा आहे, बरोबर आहे का नाही? की आज माझा नवरा दारू पिऊन आला नाही, मुलांना जवळ घेतलं, बरोबर आहे का नाही? शिवीगाळ करत नाही, मारपीट करत नाही. आज माझ्या घरात सण आहे, दिवाळी दसरा आहे. या शेषराव महाराजांना कायमची आपल्या जीवनात दिवाळी आणून दिली, एवढे उपकार त्या शेषराव बाबाचे आपल्यामध्ये. रोजची दिवाळी, रोजची दिवाळी, बरोबर आहे का नाही? चुकीचं असेल तर मला सांगा. आणि काही न घेता, काही न देता, नाही तर दारू सोडण्यासाठी इंजेक्शन आहे, मेडिसिन आहे, 50-50, 55,000चं एक इंजेक्शन आहे, असे 2 घेणं लागतात. म्हणजे 1-1 लाख रुपये खर्च आहे. आपला गरीब माणूस 1 लाख सोडा, 10,000 पण नाही, 1,000 पण खर्च नाही करू शकत. आपल्यासाठी शेषराव बाबांनी विनामूल्य हे कार्य करून दिलंय की जा ते 20-30 रुपयाची माळ घे आणि गळ्यात टाक आणि संकल्प घे. संकल्प घे, आवाज थोडा कमी घ्या. संकल्प घेतल्यानंतर पुन्हा त्याची इच्छा होत नाही. तुमच्यापैकी किती लोकांची दारू सुटली? एकदा उभे राहा बरं. ज्या ज्या लोकांची दारू सुटली ते उभे राहा. जिन जिन लोगों की दारू छूटी वो लोग खड़े रहो. तुमच्या सगळ्यांची व्यसन दारू सुटले नाही का? माझ्या बंधूंनो, तुम्हाला एक सांगतो मी, तुम्ही सगळे माझे भाऊ आहे. मी तुमच्या परिवारातला माणूस आहे. मी आणि तुम्ही अलग, कधीच अलग समजायचं नाही. मी मला हक्कानं तुम्हाला जर काही काम सांगायचं असेल सांगा. तुम्ही फोन जरी केला, माझ्या गावाला, आपल्या गावाला आम्हाला संतोष बाबाला आणायचं, मी येईन, तुमच्या करता येईल, तेव्हा तुमच्यासाठी येईल. आणि तुमच्या सहकार्यानं, तुमच्या आशीर्वादानंच आपली संघटना आज देश पातळीवर गेलेली आहे, देशाच्या पातळीवर गेलेली आहे. बोला शेषराव महाराज की, हर हर महादेव की, क्रांती सूर्य बिरसा मुंडा की. माझ्या बंधूंनो, तुमचे आता माझ्या हाताने सुद्धा तुमच्या बऱ्याच लोकांची दारू सुटलेली आहे, बरोबर आहे का? माझ्या हाताने सुटलेले हात वरती करा. आता मी पुन्हा सांगतो की तुमचं मी भलं नाही केलं, मी फक्त माळ टाकून दिली, पण तुमचं भलं करणारं कोण आहे? शेषराव बाबा की, हर हर महादेव की. मी नेहमी सांगत असतो, मला काही येत नाही, पण माझ्या अंगात जे रक्त आहे त्या रक्ताचा हा गुण आहे, बरोबर आहे का? त्या रक्ताचा हा गुण. कोणी जर चालायला लागत असेल, कोणी जर बोलायला लागत असेल, कोणी जर दुरुस्त झाला असेल, लंगडा पळायला लागला असेल, तर तो गुण, ती शक्ती माझी नाहीये, त्या रक्ताची ती शक्ती आहे. कारण ते रक्त शेषराव बाबाचं. आणि मी शेवटच्या श्वासापर्यंत, मरेपर्यंत मी सेवा करीन, तुमची सेवा करीन. मी व्रत घेतलेलं आहे, आणि खास करून आदिवासी समाजासाठी, गरीब लोकांसाठी एका क्षणाला, शेवटच्या सेकंदापर्यंत मी तुमची सेवा करेन. आणि त्याच्या पाठीमागं कारण आहे, तुमची भक्ती खरी आहे, 24 कॅरेट खरा सोना आहे. आता एवढं ऊन लागून राहिलं तरी सुद्धा तुम्ही चुळबुळ करत आहे का? याला म्हणतात तपस्या, याला म्हणतात इमानदारी. की ज्या गुरुनं आपलं भलं केलं, त्या गुरुसाठी थोडा त्रास सहन बी करायचं काम पडलं, आम्ही उठून पळणार. मानलं तुमच्या भक्तीला, मी स्वतः नमस्कार करतो, तुमच्या भक्तीला स्वतः नमस्कार करतो. माझ्या बंधूंना सदैव मी तुमच्या सोबत आहे. आणि तुमचं जी आता एवढ्या लोकांची जी दारू, मला सांगा, रोजची फक्त 200 रुपयाची पकडा. तसं तर 200 इथली सस्ती दारू नाहीये, पण रोजची एका माणसाची 200 रुपयाची जरी पकडली आपण, रोजची किती पैसे वाचवले आपल्या बाबांनी? एवढ्या लोकांचा हिशोब करा, कोटी रुपये वाचवले आपल्या. आणि आता हे पैसा कुठे चालला? आपल्या मुलाच्या शिक्षणामध्ये चालला, बरोबर आहे का नाही? हा पैसा कुठे चालला? आपल्या मुलाच्या मिठाईमध्ये चालला. हा पैसा कुठे चालला? आता आपल्या मुलांच्या कपड्यामध्ये चालला, घर बांधण्यामध्ये चालला, गाडीवर नाव आहे शेषराव बाबा, बरोबर आहे का नाही? मी सदैव या कामासाठी तुमच्या सोबत आहे. बसा, बसा. सोडणार आहे.
कुणाला सोडायची हात वर करा बरं. वा 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 वा, सगळ्यांची सोडून देऊ. अरे भाऊ बरोबर आहे ना? कौन है? काय सोडायची ना? नवी वाले जो नया छोड़ने वाले हैं वो खड़े हो जाओ. नवीन वाले नवीन सुटून जाईल. तो आज सकाळी पण पिला का? वो सुबह भी पिया नहीं पिया? फिर ऐसा क्यों करता हूँ? खुद ज्यादा पीता है, और रोज का पीता होगा, बहुत ज्यादा पीने वाला है. रात दिन चालू ही रहता होगा. देखो अभी आज नहीं छूटती तो कितने दिन का मेहमान है, क्योंकि कितना वीकनेस हो गया उसको. देखो दारू पी के हमको मरना नहीं है, हमको बूढ़ा होके 100 साल तक जीने का है. शेषराव बाबा कहते थे कि ये जिंदगी बेकार नहीं जानी चाहिए. बराबर है कि नहीं? ये कौन है? कौन दुर्घटना है? जिंदगी बेकार नहीं बनाने की. क्या हुआ? घटना कौन? इसके पैर को प्रॉब्लम है, पैर को नहीं, दारू का नहीं है कुछ. दारू पीता है. पूरा दारू पी के खत्म हो. ठीक है ठीक है. आज माला तो पहना दी ना. अभी संकल्प दूंगा, संकल्प बोलने का. और ये माला पहनने के बाद 8 दिन मांस मच्छी खाना नहीं, उसके बाद मांसाहार कर सकते हो. और जिसने भी लाल कंठी जिसके गले में है उसका सिर्फ एक ही पथ्य है, एक ही मान रखना उसका कि जिस दिन भी मांस मच्छी खाना हो तो पहले माला उतार के रखना और अगले दिन नहाने के बाद फिर से पहन लेना. माला बाबा का और शिव जी का फोटो है इसमें, और मैंने मेरे हाथ से दिया है. बराबर है कि नहीं? तो उसका मान रखो. उसमें शिव जी का गुरु का फोटो है और शेषराव बाबा जैसा गुरु मिलना भाग्य की बात है. बराबर है कि नहीं? बराबर. भाग्य की बात है. पिछले जन्म का हमारा पुण्य होगा तभी हमें शेषराव बाबा जैसा गुरु मिला. बोलो था. चल. तो जिस दिन मांसाहार करना हो, मांसाहार करने को ना नहीं है, बंदी नहीं है, फिर भी माला उतार के रखना और अगले दिन नहाने के बाद फिर से पहन लेना. बराबर है कि नहीं? और ये लाल कंठी में कितनी शक्ति है बोलूं मैं आपको. खानपुर में एक अपनी आदिवासी बहन, आकाश में से बिजली गिरी उसके आंख पे, कपड़े जल गए, लेकिन उसके गले में शेषराव बाबा की माला थी. कितना छोटा धागा है, उसको कुछ नहीं हुआ. माला को कुछ नहीं हुआ और उसका चमड़ी भी नहीं जली. कपड़े जल गए, चमड़ी भी नहीं जली. इतनी बाबा में पावर है, शेषराव बाबा में पावर है कि अगर हम मर भी जाए और ऊपर स्वर्ग में दरवाजे पे अगर कोई पूछे कि क्या किया तूने, पाप पुण्य क्या किया, अगर हम इतना भी कहे कि मैं शेषराव बाबा का भक्त हूँ, संगठन का मैंने काम किया, तो स्वर्ग में एंट्री हो जाएगी. इतनी नाम में ही पावर है शेषराव बाबा, क्योंकि इतना पुण्य किया उस आदमी ने कि वो खुद भगवान है. आज भी सिरपुर हजारों लाखों के इसमें हर शुक्रवार को लोग आते हैं. सिरपुर राजस्थान से लोग आते, यूपी से लोग आते, एमपी से लोग आते, कर्नाटक से लोग आते. बराबर है कि नहीं? गोंदिया जिले का अपना आदिवासी भाई है गोंदिया, 1200 किलोमीटर वो साइड. कैंसर था, उसको नाम लिखा हुआ है. कैंसर था, 4थी स्टेज में कैंसर था. रोने लग गया. मैंने माला बना के दी, एक नारियल बना के दिया और मैंने बोला कि मेरे हाथ तो छोटे हैं, मैं तेरे कैंसर दुरुस्त नहीं कर सकता, लेकिन दुरुस्त हो ऐसी प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ उस बाबा को. 6 महीने पहले दिया था, अभी आया वो, उसका कैंसर नील हो गया. रिपोर्ट नील आ गया. ये कहीं कहने सुनने की बात नहीं. उसका नाम और फोन नंबर लिखा हुआ है रजिस्टर पर. वो बोला कि महाराज ऐसा भगवान मैंने नहीं देखा. डॉक्टर ने मुझे तो सिर्फ बोला था 6 महीने का तेरा जिंदगी है, लेकिन 6 महीने में मेरा कैंसर नील हो गया. गोंदिया जिले का आदमी है, सिरपुर आके समाधि के पास. लेकिन हम गरीब लोग हैं. सिरपुर आना जाना 1000 रुपये जाने को लगते, 1000 आने को लगते. वहाँ पे भी खर्चा होता 2500 रुपये एक आदमी को लगेंगे. इसीलिए आप सिरपुर जब दिल चाहे तब आओ, 10 साल में आओ, लेकिन इधर उधर मत भटको. मेरा कहना क्या है, आप मुझे बुला लो ना, मैं आऊंगा आपकी सेवा के लिए आपके गांव में. आज सिरपुर जैसा तीर्थ, ये मगन भाई ने सिरपुर जैसा तीर्थ तुम्हारे गांव में लाके खड़ा कर दिया.
मुझे लाके खड़ा कर दिया कि बाबा मेरे गरीब भाई है, इनको भी दारू छोड़नी है। कोई संकट आए सिर्फ शीतराव बाबा के फोटो के सेवा में जाना। सेवा यानी क्या करना? सिर्फ बाबा को नमन करना और दिल से दुआ मांगना बाबा से। क्या दुआ मांगना? कि हे बाबा मेरे बच्चों को ठीक करे, हे बाबा मुझे ऐसा करे। श्रद्धा में बहुत ताकत होती है, बराबर है कि नहीं? बहुत ताकत होती है। और शीतराव बाबा कहीं नहीं गया है, आप सिर्फ दुआ मांगो, सर्वत्र है वो, सर्वत्र है, सर्वव्याप्त है। जब भी जहां आवाज दोगे वहां पे शीतराव बाबा है। अभी सभी को आशीर्वाद देता हूं। मुझे अभी घर पे भी जाना है सिरपुर, आपके लिए रुका मैं, 8 बजे का टाइम था, बराबर है कि नहीं? लेकिन आपके वजह से मैं सिर्फ रुकने की क्या बात है, मैं आपके लिए मरने को भी तैयार हूं। मैं तो क्या बोला कल के प्रोग्राम में कि मैं मरने के बाद अगर स्वर्ग में कोई पूछेगा मुझे कि हे संतोष तेरे पुण्य बहुत है, क्या चाहिए तुझे वरदान, तो मैं यही बोलूंगा कि मरने के बाद अगला जन्म मेरा किसी गरीब आदिवासी घर में हो, ऐसा मुझे वरदान दो। इतना मैं आप लोगों को मानता हूं क्योंकि आपके दिल साफ है, आप दिल के राजा है और भगवान के प्यारे भक्त है। भगवान को आप जैसे भक्त, भगवान को कपटी लोग नहीं चाहिए, भगवान को दिल के साफ लोग चाहिए, तभी उसकी भक्ति सफल होती है। ये महेश भाई और ये सब संगठन हमारा, ये पूरी जगह पे, गुजरात जाओ चाहे एमपी जाओ, कर्नाटक जाओ, यूपी जाओ, 2500 मंदिर बन गए। शीतराव महाराज के 2500 मंदिर बन गए, लोगों ने बनाए, जैसे हमारे मगन भाई ने बनाया, जैसे हमारे साइला में बनाया, ऐसे। और अभी सुंदर में मंदिर बनने वाला है, सुंदर अपना मनु भाई का। आपको जो कुछ भी लगे, ये मनु भाई को, मगन भाई को और ये आनंद भाई को पूछना, उनका नंबर लेना। लेकिन इधर उधर भटकना भी पाप है। मैं क्या बोलता है, अभी कोई भी महाराज बने, समझो कोई भी आप में से उठ के, तो उसको बड़ा बनाने वाले भी तो उतने ही गुनहगार है, बराबर है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं कि मैं? उसका पैर पड़ना भी, अगर वो महाराज नहीं है तो उसका काय को पैर पड़ रहा है, बराबर है कि नहीं? वो तो अपने बाबा का अपमान कर रहा है। बाबा का मूर्ति लगा के, फोटो लगा के वो दुकान चला रहा है, बराबर है कि नहीं? तो ऐसा कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, जंगल में कोई भी हो, चाहे अपने गांव में कोई भी हो, उसको बोलना कि बाबा एक है, बाबा के सिवा और कोई दूसरा बाबा नहीं है। और दूसरी बात, अपन ने ध्यान नहीं दिया कि वो अपने आप दुकान बंद गिर जाता है, लेकिन अपन ही उसको बड़ा बनाते हैं, ये गलत बात। किसी कोई भी हो। और दूसरी बात कि मैं आप सभी को एक बात बताता हूँ, हमेशा बाबा की सेवा में रहने का मतलब क्या है, बाबा तुम्हारे साथ में रहने का मतलब क्या है? फोटो तो तुम्हारे घर में है कि नहीं? हर सुबह उठने के बाद फोटो की सेवा में जाना, हाथ जोड़ना, जो बोलना है दिल ही दिल में प्रार्थना से बाबा को बोलना, और क्या चाहिए? 10 साल में भी आप सिरपुर, पैसा नहीं है तो 10 साल में भी सिरपुर आए तो भी चलेगा ना। और हर साल में मैं 1-2 बार तो आपके एरिया में आता हूँ। एक दिन, जिस दिन भी आपको पता चले गुरु का प्रोग्राम है तो काम धाम छोड़ के आना। ऐसे ही मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। अभी आप सभी को संकल्प देता हूँ, हाथ जोड़ो।